टाइप ऑफ डोमिनेंस। टाइप ऑफ डोमिनेंस समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जो है उनको दोबारा याद करना होगा। वन कैरेक्टर आर कैरेक्टर that is controlled by a gene. Gene have two alleles or pair of allele. Pair of alleles. So the specific position of a gene in a chromosome, that is called a locus. Specific position of a gene on a chromosome, that is called a locus, and plural of locus is called as the loci. Loci. Plural of locus is called as a loci. So for every gene there is a specific position or there is a specific loci. हर एक जीन का एक स्पेसिफिक पोजीशन होगा और वो जो स्पेसिफिक पोजीशन है उसको हम क्या कहेंगे? लोकस कहेंगे उस जीन। अगर हम जीन 1, जीन 2, जीन 3, there are different genes. So every gene must have a specific position जो हमेशा वो ऑक्युपाई करेगा। जीन 1 की पोजीशन स्पेसिफिक है, जीन 2 की भी, जीन 3 की भी। सो जब हम डोमिनेंस के टाइप्स की बात करते हैं तो डोमिनेंस हमारे पास ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, लेकिन इंटरेक्शन से पहले हम इसके डोमिनेंस की बात करते हैं। नंबर 1, दैट इज द कंप्लीट डोमिनेंस। नंबर 2, दैट इज द Incomplete dominance. incomplete dominance, and number 3, that is the codominance. So complete dominance is actually the dominance which was stated by the Mendel. Complete dominance which was actually stated by the Mendel. What is complete dominance? If the phenotype of the हेट्रोजाइगोट, किस हेट्रोजाइगोट की बात हो रही है? F1 हाइब्रिड की बात हो रही है। किस हेट्रोजाइगोट की बात हो रही है? Filial first one. The phenotype of Filial first one generation. heterozygote is asimilar to one of its parent. So what is complete dominance? Complete dominance में क्या होगा? Phenotype. If the phenotype of the heterozygote, मैंने already explain किया कि the heterozygote is actually F1 hybrid. If the phenotype of the heterozygote is asimilar to one of its parent, then we call it आपने दो पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस किए, आपके पास F1 जनरेशन आई। अगर F1 जनरेशन का फिनोटाइप अपने किसी एक पेरेंट इज सिमिलर टू वन ऑफ इट्स पेरेंट उस जैसा हो, बिल्कुल फिनोटाइप दोनों की एक जैसी हो, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट डोमिनेंस। उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट डोमिनेंस। And if the phenotype of the heterozygote, कौन सा heterozygote?
F1. F1 hybrid. If the phenotype of the heterozygote fall intermediate, if the phenotype of the heterozygote fall intermediate between the phenotype of its parents जो कि एक्चुअली होमोजाइगोट्स हैं, then we call it incomplete dominance. मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी दो पेरेंटल फिनोटाइप हैं, पेरेंट्स हैं, उनको क्रॉस करवाया विद टू डिफरेंट फिनोटाइप्स, और आपके पास जो F1 हाइब्रिड आता है वो दोनों पेरेंट के बजाय उन दोनों के दरमियान एक इंटरमीडिएट कर है। मतलब आप रेड को व्हाइट से क्रॉस करवाते हैं, रेड फ्लावर को प्लांट को व्हाइट फ्लावर प्लांट, और आपके पास पेरेंटल जनरेशन और F1 में आपके पास पिंक आ गया, तो पिंक क्या है, एक्चुअली ये रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट है। सो मैंने क्या बताया कि phenotype of the heterozygote fall intermediate between the phenotype of its parent. This is actually pink क्या है यहाँ पर, this is the phenotype of the heterozygote. Intermediate क्या है कि आपके पास जो homozygote या parents है रेड एंड व्हाइट है, इंटरमीडिएट दोनों का क्या है, that is the pink. इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट डोमिनेंस बताया था कि आपके पास tall pea plant versus dwarf, that is the parental, दोनों को आपने क्रॉस करवाया, आपके पास F1 में 100% टाल आ गए। सो आपको मैंने बताया था कि if the phenotype of the heterozygote जो कि F1 है is as similar to one of its parent जो कि यहाँ पे टाल है और parent भी टाल है, तो we call it complete dominance. And अगर दोनों के दरमियान in between intermediate आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, incomplete dominance. And if the phenotype, codominance क्या है कि if the phenotype of heterozygote, again difference तीनों में कहां पे आ रहा है, phenotype of the heterozygote include phenotype of both the parent, we call it codominance. हम उसको क्या कहेंगे कि phenotype of the heterozygote that include the phenotype of both the parent. मतलब आपके पास एक कोई भी जो गोट्स हैं वो एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, दोनों को क्रॉस करवाया आपने, और उसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे F1 में, तो आपके पास वो ब्लैक विथ वाइट फ्लेक्स, फ्लेक्स कहते हैं धब्बों को, जो बकरी के बच्चे होंगे अगर उनके पेरेंट एक कंप्लीट ब्लैक और कंप्लीट प्योर वाइट हो, उनके बच्चों में आप देखेंगे या उसका कलर वाइट होगा और उसमें बड़े बड़े ब्लैक डॉट्स होंगे, धब्बे होंगे, बड़े बड़े पेचेस होंगे, या ब्लैक होगा और उसमें बड़े बड़े व्हाइट पेचेस होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एट द सेम टाइम उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं उन दोनों का फिनोटाइप उस ऑफस्प्रिंग में शो हो रहा है, कोई एक भी मास्क नहीं हुआ, कोई एक भी कंप्लीटली मास्क, रेड भी, ब्लैक भी और व्हाइट भी। ये जस्ट आपको मैंने समझने के लिए एग्जांपल दिए। सो हमारे पास जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसकी एग्जांपल जो मैंने आपको रेड एंड पिंक की दी, अगर हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो I have an example that is a mono hybrid cross. What is mono hybrid cross? The cross which involve a single gene.
antirrhinum majus. Antirrhinum majus, which is commonly called as snapdragon, ornamental plant है. So red flower and white flower, antirrhinum majus प्लांट के दरमियान एक मोनोहाइब्रिड ग्रास है. और अगेन रेड इंटू व्हाइट, that is the parental combination, homozygote. And the F1 we have pink phenotype, which is intermediate between both parental phenotype. So this condition is actually the incomplete dominance, which is actually incomplete Dominance. And in F2 again we have 1:2:1 ratio, phenotypic ratio, where we have red into pink into white, red into pink into white. अब थोड़ा सा मैं इंटरेक्शन ऑफ जीन्स की तरफ जा रहा हूं. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए मास्क द इफेक्ट, हम सिंगल लोकस के ऊपर बात कर रहे हैं. सिंगल लोकस का मतलब क्या है? सिंगल जीन. हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल लोकस का मतलब सिंगल जीन. और सिंगल जीन में हमारे पास फिर क्या है? पेयर ऑफ एलील्स. हमारे पास क्या है? Pair of alleles. पेयर ऑफ एलील. जो डोमिनेंस का फिनोमेना है वो कहां पर हो रहा है? वो सिंगल लोकस के ऊपर हो रहा है. डोमिनेंस का फिनोमेना कहां हो रहा है? Single locus. सिंगल लोकस के ऊपर हो रहा है. एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को मास्क कर रहा है. एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को मास्क कर रहा है. अब इसी तरह हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस. उसको हम क्या कहते हैं? Epistasis. एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस में क्या है? If one gene masks the effect of another gene, mask the effect of another gene, तो यहां पर क्या कंडीशन है? वन जीन, वन लोकस, another gene, another locus. यानी एक जीन, ये जो एक्शन हो रहा है इसमें दो लोसाई इन्वॉल्व है. एक जीन इसकी एक अलग पोजीशन है दूसरी जीन की. एक जीन जब दूसरे जीन के इम्पैक्ट को के इफेक्ट को मास्क करता है तो वी कॉल इट एपिस्टेसिस. और जब लोकस के अंदर ही उसके एलील दूसरे एलील को मास्क करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? डोमिनेंस. हम उसको क्या कह रहे होते हैं? So the difference between the epistasis and the dominance, that is actually the position. The major difference between the epistasis and the dominance, दोनों में मास्क हो रहे हैं. इफेक्ट जो है वो मास्क हो रहा है. लेकिन डोमिनेंस में कहां पे इफेक्ट मास्क हो रहा है? एक जीन के एक एलील दूसरे एलील को कर रहा है. मतलब एक लोकस के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है. एक सिंगल पोजीशन के ऊपर हो रहा है. और एपिस्टेसिस में वन जीन एट वन लोकस मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन At एट अनदर लोकस. another locus. समझ आ रही है आपको? सो इफ
वी आर कंसिडरिंग द एपिस्टेसिस, तो हमारे पास एक जीन नहीं होगा, फिर हमारे पास कितने जीन होंगे? वी मस्ट हैव टू जीन्स, वन जीन एट वन लोकस एंड अनदर जीन एट अनदर लोकस। फिर हमारे पास ये होगा कि एक जीन, वन जीन दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। सो हमारे पास टू डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स आ जाएंगे। वन, द जीन विच मास्क द इफेक्ट, इसको हम कहेंगे द एपिस्टेटिक जीन, एपिस्टेटिक जीन, the gene which masks the effect of other gene, and the other gene कौन सा है? which effect is being masked, उसको हम कहेंगे hypostatic gene, जिसका effect masked हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? which is masked. So the gene, the first gene which is going to mask the mask the effect of another gene is called as epistatic. will be the Epistatic gene. एपिस्टेटिक, और जिसका इफेक्ट जो है मास्क हो गया, Hypostatic. दैट इज हाइपोस्टेटिक। सो जब हम एपिस्टेसिस की तरफ आते हैं तो हमारे पास इसकी काइंड्स हैं, लाइक डोमिनेंट एपिस्टेसिस, like recessive epistasis. What is the difference between the dominant epistasis and recessive epistasis? Yeah, which make them an epistasis a dominant and a recessive? एक एपिस्टेसिस को कौन सी चीज डोमिनेंट एपिस्टेसिस बनाती है और कौन सी चीज रिसेसिव एपिस्टेसिस बनाती है? And that is this epistatic gene. ये जो epistatic gene है, if the epistatic gene is dominant, we call it dominant epistasis. And if this epistatic gene is recessive, we call it. समझ आ रही है आपको? दोबारा मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि मैंने आपको बात डोमिनेंस से स्टार्ट की। आपको मैंने बताया कि जीन, उसकी पोजीशन, लोकस, मैंने आपको बताया कि जीन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एलील। हम जब डोमिनेंस की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली गोइंग अराउंड अ सिंगल लोकस, अ सिंगल जीन, और उसके अंदर जो मास्क हो रहा होता है इफेक्ट, तो वो जीन का एक एलील उसी जीन के दूसरे एलील को कर रहा होता है। जब हम एपिस्टेसिस की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक के बजाय दो जीन होते हैं और दो लोकस, और उसमें एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर रहा होता है। समझ आ रही है आपको? एक जीन जो मास्क कर रहा है, that is epistatic gene. and which is being masked, Hypostatic gene. and if this epistatic gene is dominant, Dominant epistasis. and if this epistatic gene is recessive, Recessive epistasis. recessive epistasis. So now I am going toward the examples, जहां से आपको ये जो बात मैंने बताई है इसको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं अब एग्जांपल्स की तरफ जाऊंगा। The first example, Blood group. that is the dominant epistasis, और मैं आपको dominant epistasis में एक और भी बता दूं कि wherever this dominant epistasis occur, the